Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 4 climate, and in this part of the chapter we had learned about the maps of Brazil, then map of India, and some questions were upon these maps and we had solved it. Now today we are going to learn the next part of this chapter. Then now listen carefully. On the page number 27 we are seeing here some graphs, some bar graphs are there, and the bar graphs are about the Brazil cities. तो ब्राज़ील की सिटीज़ के ये बार ग्राफ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. तो सबसे पहले कौन सी सिटीज़ है हम जान लेते हैं. द फर्स्ट ग्राफ इज़ अबाउट द मनाउस सिटी, एंड देन सेकेंड पोर्टो एलेगर, एंड द नेक्स्ट ग्राफ इज़ अबाउट द बेलेम, एंड द फोर्थ ग्राफ विच इज़ अबाउट द रियो डे जेनेरो. तो इस तरह के हमें 4 सिटीज़ के ये ग्राफ यहाँ पे दिख रहे हैं. देन एनुअल एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल ग्राफ्स. तो ये ग्राफ्स किसके? एनुअल एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल का ये ग्राफ है, जिसमें जो रेड लाइन है या पिंक लाइन है ये वो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर बता रही है, और जो ब्लू लाइन है वो मिनिमम टेम्परेचर बता रही है. तो हम इस ग्राफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. ऑल द ग्राफ्स आर in the same type. All the graphs are bar graphs. Then in the bottom of this bar graph we are seeing here the months like January, February, March, April, May, like this some months are here. And at the left side of the graph we are seeing here the temperature which is about the degree Celsius. Then we are seeing here at the right side of the graph there is a rainfall in millimeter. Okay, all the graphs are like this. Then now listen carefully. Some questions are upon it. We should have to observe the graph and try to solve the answers. Okay, study the graphs given in the figure 4.4 and answer the following questions. तो हमने यहाँ पे ग्राफ्स के बारे में जनरल आइडिया वहाँ पे ले ली है. तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो उन ग्राफ्स के ऊपर दिए गए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इन विच मंथ इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन ऑल द 4 सिटीज़. तो हमें ये 4 सिटीज़ का ऑब्जर्वेशन करके हम ये बता सकते हैं कि इन मनाउस द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ फाउंड इन द मंथ फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर. देन इन बेलेम इट इज़ फाउंड इन द मंथ ऑफ जून, in the month of June to December. And then in Porto Alegre it is found in the month of January and February. And in Rio de Janeiro it is found in the month of February. Okay, the next question is there, that is in which month does it rain the most in the given cities. तो सबसे ज़्यादा मतलब रेन वहाँ पे कब हुई है, कौन से मंथ में हुई है. तो इन मनाओ इट रेन मोस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च. इन बेलेम इट इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च. एंड इन पोर्टो एलेगर इट इज़ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर. एंड इन रियो डे जेनेरो इट इज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मार्च. Okay, the next question is there, that is when does the Brazil have its rainy season. Then we can say that Brazil has its rainy season from September to November as well as from March to May. Then the next question is there, that is which city has the maximum range of temperature, how much it is. Then Manaus has the maximum range of the temperature, it is nearly from 23 degrees Celsius minimum temperature and 33 degrees Celsius maximum temperature. Then the next question is there, what type of climate will be found in the Rio de Janeiro. तो रियो डे जेनेरो में किस तरह का मतलब क्लाइमेट हमें, किस टाइप का क्लाइमेट हमें वहाँ पे दिख रहा है. द आंसर इज़ humid and moderate type of climate we will be found in the Rio de Janeiro. Okay, now the next part is there, that is
द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का ये जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द वास्ट latitudinal extent of the Brazil, it experience wide range of climatic variation in climate। तो ये जो ब्राज़ील है उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नियर इक्वेटर इट इज़ हॉट। तो इक्वेटर के पास क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट। वाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उसके पास हमें टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट वहाँ पे दिखाई देता है। देन ब्राज़ील गेट रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ब्राज़ील को जो रेन मिलती है, रेनफॉल होता है वहाँ पे, वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड की वजह से और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की वजह से होता है। जिसके बाद पार्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू नॉर्थन कोस्ट। द एस्कार्पमेंट एक्ट एज एन obstruction to the wind coming from the sea and cause orographic type of rainfall in the coastal region। तो ये जो मतलब ब्राज़ील का हाईलैंड वाला पार्ट है वो नॉर्थ कोस्ट की तरफ है, और जिसके बाद एक एस्कार्पमेंट वहाँ पे दिखाई देती है जो इससे पहले हमने देखी है। वो उन विंड्स के, सी की तरफ से आने वाली विंड्स के लिए एक वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, ऑब्स्टेकल वहाँ पे बनता है, और जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ द विंड गेट रिड्यूस। तो जिसकी इस हाईलैंड की वजह से तो ये जो विंड्स है उनके जो इफ़ेक्ट्स है वो कम हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट द रेनफॉल इज़ मिनिमल। तो ये जिसकी वजह से रेनफॉल वहाँ पे कम होती है। दिस रीजन इज़ रेन शैडो रीजन। तो जिसकी वजह से इसे रेन शैडो रीजन भी कहा जाता है। दिस रीजन इज़ कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। तो इस रीजन को ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। कंसिडर द टेम्परेचर इन द ब्राज़ील इन नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ हॉट वाइल। अगर हम टेम्परेचर के बारे में देखें तो नॉर्थ पार्ट जो है वो वहाँ पे हॉट होता है, और जो मतलब टेम्परेचर इन द साउथर्न पार्ट आर कंपैरेटिवली लोअर। तो साउथ का जो टेम्परेचर होता है वो उसके कंपैरिजन में कम होता है। सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस पैटर्न। तो सीजनल वेरिएशन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच। तो मतलब जो इक्वेटर है वहाँ पे जो ब्राज़ीलियन कोस्ट है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता। In the coastal region near the equator in Brazil, differences in the temperature are negligible। तो मतलब जो कोस्टल रीजन है इक्वेटर के पास का, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उसके जो डिफरेंसेस हैं वो निग्लिजिबल वहाँ पे होते हैं। द विंड मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन द रीजन। तो इस रीजन में जो विंड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ वहाँ पे जाती है। Similarly, the convergence zone of the trade wind is weak here। जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड है वो वहाँ पे वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट साइक्लोन आर नॉट फॉर्म। जिसकी वजह से वहाँ पे साइक्लोन नहीं बनते। दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की कोस्ट को बहुत ही कम ऐसे साइक्लोन वहाँ पे दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। तो इस कंट्री का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में है। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इक्वेटर जो है वो कंट्री के नॉर्थ पार्ट से पास होता है। द टेम्परेचर इज़ मोर इन दिस रीजन। जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजोन वैली इज़। तो अमेजोन वैली की एवरेज टेम्परेचर क्या आती है? 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। द क्लाइमेट इज़ कूलर इन द हाईलैंड्स। हाईलैंड्स की तरफ क्लाइमेट कैसा होता है? कूल होता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी द ओस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो
सी के पास होने की वजह से, सी की वजह से वहाँ पे माइल्ड और ह्यूमिड ऐसा क्लाइमेट वहाँ पे दिखाई देता है, और उसके साथ साथ मतलब उबालने वाला या भट्टी जैसा जो टेम्परेचर है वो भी एक्सपीरियंस हम वहाँ पे कर सकते हैं। द अमेज़न वैली रिसीव्स अराउंड 2000 मिलीमीटर रेनफॉल। तो अमेज़न वैली जो है वो 2000 मिलीमीटर रेनफॉल वहाँ पे होता है। वाइल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव 1000 टू 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में 1000 से लेकर 1200 तक मिलीमीटर तक रेनफॉल वहाँ पे होती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर, दैट इज़ can you tell, sorry, some questions are there about the India. Then the question is there, what differences do you find in the rainy season of Chennai and other cities of the India? Why? तो ये जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे जो भी बार ग्राफ बताए गए हैं इस तरह के, उनके ऊपर है। तो ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे ले सकते हैं। ओके, बाय।